نے چاہا کہ میں انسانوں کو پیدا کروں، اور اس کی مشیت میں، ارادہ الہی میں ازلی اور ابدی طور پر یہ بات تھی کہ دنیا کی تخلیق کرنا ہے، دنیا کو آباد کرنا ہے، اشرف المخلوقات ایک پیدا کرنی ہے انسانوں کی، اور اس اشرف المخلوقات میں اپنے حبیب کو مبعوث کرنا ہے۔ تو فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، مگر ابتدا کہاں سے ہوئی؟ میں نے تو بات کی آیت کا ٹکڑا پڑھ دیا، ذرا کلام الہی تو دیکھو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، محبوب یاد تو کیجئے ذرا اس وقت کو جب آپ کا رب فرشتوں سے کہہ رہا تھا۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ محبوب اس وقت موجود ہے، تو کہاں موجود ہے؟ نور مصطفیٰ کی شکل میں موجود ہے، اور جب خطاب فرشتوں سے ہو رہا ہے تو نور مصطفیٰ دیکھ رہا ہے، اور جب زمین پہ اترے ہیں اللہ کے نبی بشری اعتبار سے کلام الہی نازل ہوا تو یاد دلایا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ، محبوب یاد تو کیجئے ذرا، آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے، ہم آپ کو یاد دلا رہے، یاد تو کیجئے۔ کیا یاد کیجئے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ محبوب یاد تو کیجئے، آدم کی تخلیق کی اللہ رب العزت نے، 4 عناصر سے ایک تخلیق آدم ہوئی۔ انسان میں 4 عناصر شامل ہے، چونکہ آدم ہمارے جد کریم میں 4 عناصر شامل تھے۔ کیا تھے؟ ایک مٹی، ہوا، پانی، آگ۔ پہلے مٹی لائی گئی، تو مٹی کہاں سے لائی؟ جنت کی مٹی نہیں لی گئی، یاد رکھیے تخلیق تو آدم کی جنت میں ہو رہی ہے، مگر مٹی جنت سے نہیں لائی جا رہی ہے بلکہ زمین سے لائی گئی ہے۔ زمین سے مٹی لائی، اس میں پانی گوندا گیا، پانی ڈالا گیا، پانی میں مٹی کو گوند دیا گیا، چھوڑ دیا اس کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 40 دن تک اس مٹی پر بارش برستی رہی، 30 دن غموں کی بارش، 10 دن خوشی کی بارش۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہے، خوشی کم ہے۔ 3 حصے غم ہے، 1 حصہ خوشی ہے، یعنی اگر پوری زندگی کا انسان جائزہ لے تو 1/4 اگر کرے تو 3 حصے وہ غم میں گزارتا ہے، ٹینشن میں، پریشانی میں، تکلیف میں، اور 1 حصہ جو ہے زندگی کا وہ خوشی میں گزارتا ہے۔ 30 دن تک بارش ہوتے رہی اس پر، 30 دن غم کی اور 1 دن خوشی کی، 40 دن کل بارش ہوئی۔ مٹی میں پانی کے گوندنے سے، بھیگنے سے چپچپاپن پیدا ہوا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے، اپنے دست مبارک سے آدم کے پتلے کو تیار کیا، ہوا سے سکایا گیا، اور جب ہوا نے مٹی کو سکا دیا 3 عنصر شامل ہوئے، پانی، مٹی، ہوا، اور پھر آگ میں تپا کے مٹی کو کچھ مضبوط کیا گیا، 4 عنصر شامل ہو گئے، اور اس کے بعد پھر روح کو ڈالا۔ اب یہاں رک جائے، پتلہ آدم بنا ہے 4 چیزوں سے، ایک ہے مٹی، دوسرا ہے پانی، تیسرا ہے آگ، چوتھی ہوا۔ 4 چیزوں سے آدم بنا، پھر آدم کی نسلوں میں اس کے اثرات آئے، آدم کے ساری اولادیں مٹی، پانی، ہوا سے پیدا ہوئی، 4 چیزوں سے پیدا ہوئی۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق تو اس وقت ہوئی جب زمین بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، نبی کی تخلیق تو اس وقت ہوئی تھی جب سورج بھی پیدا نہیں ہوا تھا، آگ بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، ہوا بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، پانی بھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ تو بات واضح ہو گئی کہ ساری کائنات کے جتنا ذرہ ذرہ ہے، چاہے مٹی ہو، زمین ہو، آسمان ہو، تخلیق میں سب نبی کی محتاج ہے، مگر نبی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ نبی تھے تو ان کی تخلیق ہوئی، یہ نہیں کہ یہ تھے تو نبی بنا۔ تو جب یہ تھے ہی نہیں اور نبی بن گیا تو پھر کون ہے جو کہتا ہے کہ نبی مٹی کا پتلا خاکی ہے؟ میں کہتا ہوں ہوش کی دوا کر، ذرا پہلے تو یہ بتا کہ نبی جب بنے اس وقت مٹی تھی کیا؟ تو جب مٹی تھی نہیں تو نبی مٹی کہاں سے ہو گئے؟ تو بظاہر خاکی ہے، حقیقتاً نور ہے۔ اب آدم کے پتلے میں روح ڈالی اللہ نے، روح نے کیا کیا؟ گئی ناک کے نخنے سے گھسیڑا گیا، ڈالا گیا، اللہ نے فرمایا داخل ہو جا، روح گئی، گردش لگایا، گھوما پھرا باہر، ارشاد ہوا اے روح گئی کیوں نہیں؟ اچھا دیکھو بڑی عجیب بات ہے، وہابی لوگوں کا ایک عالم معاملہ کیا معلوم ہے، نبی کے علم غیب پہ سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ اب اللہ نے روح ڈالی، اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ کیوں نہیں گئی، یہ گھس کر باہر کیوں آئی؟ ارے معلوم تھا کہ نہیں؟
फिर भी पूछ रहा है, ऐ रूह तू अंदर ठिकी क्यों नहीं, ठहरी क्यों नहीं, चल दाखिल हो जा। दूसरी बार दाखिल किया गया, फिर रूह नाक के नथने से दाखिल हुई हजरत आदम के जिस्म के अंदर, पूरे जिस्म किया, दौरा किया, गर्दिश की, फिर नाक के नथने से बाहर। अल्लाह ने फरमाया तीसरी बार क्या है, रूह दाखिल हो जा। फिर तीसरी बार में गर्दिश करके बाहर आती है। रब को तो मालूम है कि क्यों दाखिल नहीं हो रही है, मगर रब बताना चाहता है, रब की हिकमत कि देख लो मेरे नबी के नूर की अहमियत कितनी है। तखलीक आदम में आदम भी मेरे नबी के नूर का मोहताज है। अब तीसरी बार खिताब हुआ है, रूह तू दाखिल क्यों नहीं होती, इत्मीनान क्यों नहीं आता, तुझे सुकून क्यों नहीं आता। तो रूह कहती है, रब कायनात में उस जिस्म में कैसे इत्मीनान से ठहरूं जो जिस्म तारीख है, अंधेरे वाला है। जहां अंधेरा हो वहां मुझे करार नहीं। मैं लतीफ हूं, लताफत पसंद हूं, नफासत पसंद हूं, और जो नफासत पसंद होता है वो अंधेरे में नहीं होता, अंधेरे से घबराहट होती है, वहां मुझे करार नहीं, चैन नहीं। ऐ रब्बे कायनात वहां चैन कैसे मैसर आए जहां रोशनी ना हो। तो अल्लाह ने फरिश्ते को हुक्म दिया, फरिश्तों मेरे नबी के नूर को पेशानी आदम में चिस्पा कर दो। और जैसे ही आदम की पेशानी पर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर चिस्पा किया गया, नूरे मुस्तफ़ा से पुतला आदम रोशन हुआ, रूह को करार मिल गया। बात समझ में आ गई, जहां मुस्तफ़ा होते हैं वहां करार हुआ करता है। जहां मुस्तफा है वहां करार है, वहां चैन है। इसीलिए आला हजरत ने कहा, आला हजरत की हदायत बख्शिश का बोझ नहीं उठा सकते यार ये लोग, क्या आला हजरत की किताबों का बोझ उठाएंगे। आला हजरत कहते हैं, यादे गैसू जिक्र हक है आहा कर, दिल में पैदा लाम हो ही जाएगा। अभी तशरीह करूंगा तो वक्त हो जाएगा, कभी मौका मिला ना बॉम्बे में तो हदायत बख्शिश की शरह पे ही गुफ्तगू करेंगे। यादे गेसू जिक्र हक है आह कर, दिल में पैदा लाम हो ही जाएगा। जिक्र मुस्तफ़ा जहां होता है वहां खुदा होता है, और जहां खुदा होता है वहां वहशत नहीं होती, डर नहीं होता, खौफ नहीं होता। तो मुस्तफ़ा का नूर लगा आदम में, जिस्म में रूह पहुंची, इत्मीनान हुआ, आदम उठे, छींक ली। तो फरिश्तों ने कहा, आदम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। ये सबसे पहला जुमला था जो आदम की जबान से निकला। फरिश्तों ने कहा, या रहमकल्लाह, अल्लाह तुम पर भी रहम करे। अल्लाह ने फरमाया, आदम तुझे छींक आई, तूने मेरी तारीफ बयान की। फरिश्तों तुमने आदम को दुआ दी, ये छींक पर अलहम कहना और सुनने वालों के लिए या रहमकल्लाह का जवाब देना मैं मुस्तफ़ा की उम्मत पर लाजिम कर दूंगा। इसलिए उम्मत के छींक आए तो अलहम कहो, क्योंकि हमारे बाप आदम ने अलहम कहा। अब उसके बाद क्या हुआ, जब आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में जान पड़ी, आदम ने सर को उठाया। अल्फाज हदीस सुने जिसको इमाम कस्तलानी ने अल महबुल दुनिया की जिल्द नंबर 1 सफ़ा 70 पर इमाम अहमद इब्न कस्तलानी लिखते हैं कि अन्नहु लम्मा खलक़ल्लाहु ताला आदम, और जिस वक्त अल्लाह ताला ने आदम की तख्लीक की, अल्हम्महु अन क़ाल या रब्बी लम कुन्नी अबा मोहम्मद, तो रब तबारक व तआला ने आदम को किस अंदाज में पुकारा, अय अबू मोहम्मद, अय मोहम्मद के बाप। तो आदम को तो अभी औलाद ही नहीं हुई, आदम को तो अभी बच्चा ही नहीं, अभी तो आदम ही वाहिद है, मगर अल्लाह ने खिताब किया, अय अबू मोहम्मद, अय मोहम्मद के बाप। तो आदम ने अर्ज की, ऐ रब्बे कायनात, तूने मेरी कुन्नियत, मेरा लक़ब अबा मोहम्मद क्यों रखा, अबू मोहम्मद क्यों रखा, मोहम्मद के वालिद क्यों रखा। क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या आदमो रफ़ऊ रासका, ऐ आदम जरा ऊपर तो निगाह उठाकर देख, अपने चेहरे अक़दस को तो उठा, अपने सर को तो उठा। फराफा रासिही फरा नूर मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सुरादिकिल अर्श, तो आदम ने सर को उठाया तो अर्श आजम पर एक नूर को जगमगाता हुआ देखा। कहां देखा, हाँ देख लीजिए, अल्फाज हदीस सुन लीजिए, इमाम कस्तलानी ने लिखी, हवाला दे चुका हूं, अल महबुल दुनिया जिल्द 1 सफ़ा 70, जो सीरत रसूल पर मुअत्तबर किताब है। बाद के तमाम मौलवी उलमा ने इन्हीं किताबों से हवाले लिए। अल्फाज हदीस है
फरफ़अ रासिही, बस आदम ने अपने सर को उठाया, फरआ नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सुरादिल अर्श, तो आदम ने अर्श के किनारे पर नूर मुस्तफ़ा को देखा। एक कौम तो खुदा को अर्श पर बिठाने पे तुली हुई है, बोलती नहीं अर्श जो है ना वो अल्लाह उस पर बैठा हुआ है। और आज तक हमारे उस सवाल का जवाब ही नहीं है इस कौम के बाद, जब अर्श को पैदा नहीं किया तो तब कहां बैठा हुआ था? अरे जब अर्श नहीं था तो कहां बैठा था? तो आप कहेंगे नहीं, जिस वक्त अर्श नहीं था तो उस वक्त बैठा हुआ नहीं था। तो मैं कहूंगा जैसे पहले बैठने से पाक था अब भी क्यों नहीं पाक है? अब कौन सी मोहताजी आ गई कि उसको अर्श पर बैठने की जरूरत पड़ गई? जनाब सुनिए, अकीदे अहले सुन्नत ये नहीं है, हदीसें बताती है कि अर्श पर नूर मुस्तफ़ा था। तो अर्श ठिकाने मुस्तफ़ा है, मकामे मुस्तफ़ा है, चलवा गाहे मुस्तफ़ा है, आराम गाहे मुस्तफ़ा है। इसी को आला हज़रत ने कहा कि वही ला मका के मकी हुए, सारे अर्श तख्त नशी हुए, ये नबी है जिनके ये है मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। हमारे खुदा का कोई मकान नहीं है, ये मकान मुस्तफ़ा है। तो आदम ने देखा कि अर्श पर मुस्तफ़ा का नूर जगमगा रहा है। फ़क़ाला, तो हज़रत आदम ने अर्ज की, या रब्बी मा हाज़ा नूर, ए खालिक़ कायनात ये कैसा नूर है, ये कैसी रोशनी है? क़ाला हाज़ा नूर नबिय्य मिन ज़ुर्रियती का, अय आदम ये उसका नूर है जो तेरी औलादों में पैदा होंगे, तेरी ज़ुर्रियत में आएंगे। इस्मुहु फ़िस समाई अहमदुन, और मैंने आसमानों में इनका नाम अहमद रखा है। आसमानों में मैंने नाम इनका क्या रखा है? अहमद। वफ़िल अर्दी मुहम्मदुन, और जब जमीन पर भेजूंगा ना तो इनका नाम मोहम्मद रखूंगा। और दोनों के मायने होते सबसे ज्यादा तारीफ किया गया, सबसे ज्यादा तारीफ किया गया। तो जब कायनात ही नहीं थी तो कौन था जो सबसे ज्यादा तारीफ कर रहा था? तो वो रसूल का परवरदिगार था जो अपने हबीब की तारीफ कर रहा था। और एक जात थी खुदा की, एक जात थी मुस्तफ़ा की। मुस्तफ़ा तो कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। और अल्लाह अपने हबीब के बारे में कह रहा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद मेरे रसूल है। ये अल्लाह की तारीफ बयान करता था, परवरदिगार अपने हबीब की तारीफ बयान कर रहा था। इसलिए फरमाया सबसे ज्यादा तारीफ किया हुआ, फरमाया कि जमीन पर जब भेजूंगा नाम मोहम्मद रखूंगा। लौ लहू मा खलक़तुका वला खलक़तुस समाई वला अर्दा, अय आदम अगर इस जात को पैदा करना मेरा मकसूद ना होता तो ना मैं तुझे पैदा करता, ना मैं आसमानों को पैदा करता, ना इस जमीन को पैदा करता। इस जात को पैदा करना मेरा मकसूद था। मैं मोहताज नहीं हूं इंसानों का कि वो मेरी इबादत करे, मैं मोहताज नहीं हूं फरिश्तों का कि वो मेरी इबादत करे, मैं मोहताज नहीं कि जमीन मेरी इबादत करे। मैं बेनियाज हूं, मेरी शान ये है अल्लाह उस समद, वो बेनियाज है। फरमाता अगर पूरी कायनात मिलकर मेरी इबादत में मशगूल हो जाए तो मेरी खुदाई में कोई चार चांद नहीं लग जाएंगे, और पूरी कायनात अगर मेरी मुखालिफ हो जाए तो मेरी खुदाई में कोई कमी नहीं आ जाएगी। मैं बेनियाज हूं। अगर मैंने कायनात की तख्लीक की तो मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मुस्तफ़ा को मबूस करना है, मुस्तफ़ा को भेजना है। तो पूरी कायनात का सबब मुस्तफ़ा की जात है, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अब आइए देखिए, अब मैं ये हदीस सुना दूं, हो सकता है कुछ लोगों को अल महबुल दुनिया से इत्मीनान ना हो, क्योंकि अहले हदीस एक ऐसा फिरका पैदा हो चुका है जिसने ऐसा लगता है कि जिब्रील ने उनके कान में बोल दिया है कि इमाम बुखारी के अलावा किसी को मत मानना, और उन्होंने उसको गार्ड बांध के बांध लिया। तो अब उसके अलावा कोई भी आप हदीस की किताब बताओ तो बोलते नहीं नहीं बुखारी में है क्या, मुस्लिम में है क्या? तो ये क्या जिब्रील ने बताया था तुझे कि बुखारी मुस्लिम में है उसी को मानना? बुखारी में हदीस कितनी है भाई, उससे पूछो कितनी है। तकरार से हटा दीजिए तो 3333। तो रसूलुल्लाह ने अपने 63 साल की जिंदगी में 3000 बातें बोली है। अरे तुम मेरी तकरीर की बातें जमा करो तो हजारों है। मुझ जैसे फटीचर की बातें जो कई जमाने से तकरीरें कर रहा है, बचपने से तकरीर कर रहा है, हजारों बातें, हजारों नसीहतें। तो मुझ जैसे फटीचर की हजारों बातें, मगर जो नबी खास मकसद तबलीग के लिए 63 साल में सिर्फ 3000 बातें बोली उसने। और फिर वो 3000 में सहाबा के भी अकवाल, ताबई के भी अकवाल,
कुछ जगह तो इमाम बुखारी ने हदीस ही नहीं लिखी, सिर्फ बाब लिखा, बाब के तहत एक उन्वान लिख दिया, उसको भी हदीस समझा गया। तो कहने का मतलब ये है कि और भी तो हदीस की किताबें हैं, लेकिन बहरहाल इनका फिरके का जो शेवा है वो ये है कि नहीं, हम तो साहब अल-माहिबुल दुनिया नहीं मानते, हम साहब अल-वफा की किताब बताओ ये नहीं मानेंगे, सीरतुल हलविया बताओ नहीं मानेंगे, मदारिजुन नब्बत बताओ, सीरत की जितनी किताबें, हत्ता के सीरत इब्न इसाक और सीरत इब्न हिशाम जिसके लिखने वाले ताबई और तबे ताबई है, उनकी भी किताबों को नहीं मानते। जो ताबई और तबे ताबई उनकी भी किताबों को नहीं मानते। तो चलिए इमाम बुखारी की किताब से मान लीजिए। इमाम बुखारी इस हदीस को तारीखुल कबीर जिल्द 7 सफ़ा 374 पर लिखते हैं। इमाम अहमद ने लिखा, बहुत सारे हवाले में बाद में देता हूं, हदीस क्या है पहले सुन लीजिए। अन मैसरतिल फजरिन रदियल्लाहु ताला अन्हु काल, मैसर इब्न फजर से रिवायत है, वो कहते हैं कुल काला कुल तो या रसूलुल्लाह, वो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से अर्ज की कि अल्लाह के नबी मता कुलता नबिया, अल्लाह के नबी रब तबारक व तआला ने सबसे पहले किसको पैदा फरमाया? काला व आदम बैन रूही वल जसद, फरमाया मैसरा सुन ले जान ले, मुझे रब ने उस वक्त नबी बना दिया था, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम जिस्म और रूह के दरमियान में थे। अभी आदम के जिस्म में रूह नहीं डाली गई थी, मैं उस वक्त भी नबी था। तो ये हदीस वाज़े जो सही हदीस है, सहीहुल इस्नाद हदीस, जिसको इमाम बुखारी ने तारीखुल कबीर जिल्द 7 सफ़ा 374 पर लाया। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने मुस्नद अहमद जिल्द 5 सफ़ा 59 पर, इमाम तबरानी ने माजिमुल कबीर जिल्द 20 सफ़ा 353 हदीस नंबर 834 पर, इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक जिल्द 1 सफ़ा 608, इमाम बहकी ने दलाइल उन-नबुव्वत जिल्द 1 सफ़ा 84, अब्दुल रहमान इब्न जौज़ी ने अल-वफ़ा सफ़ा 26, इमाम अबू नुअयम ने हिलियतुल औलिया जिल्द 9 सफ़ा 53, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अल-ख़साइसुल कुबरा जिल्द 1 सफ़ा 8, इमाम कस्तलानी ने अल-महबुल दुनिया जिल्द 1 सफ़ा 58, हत्ता के गैर मुक़ल्लिदीन के सबसे बड़े बाबा आदम इब्न तैमिया ने भी अल-फतावा जिल्द 2 सफ़ा 150 पे लिखा। इनके दूसरे अब्बा हुजूर इब्न कसीर, उन्होंने अल बिदाया वन निहाया जिल्द 2 सफ़ा 321 पे लिखा। इमाम हाकिम ने कहा सहीहुल इस्नाद, यह हदीस की सनद सही है। इब्न हजर अस्कलानी और अल्लामा ज़हबी जो इब्न तैमिया के शागिर्द, दोनों ने लिखा सहीहुन, यह हदीस सही है। तो गर्ज के ये हदीस से मैंने बताया कि रसूलुल्लाह के नूर की तख्लीक सबसे पहले हुई, मगर अब कुछ वहाबी एक बड़ी दूर की कौड़ी लाते हैं। और इस ताल्लुक से मेरा एक मनाजरा हुआ जो नेट पर डला हुआ है, ऑडियो मनाजरा है। जाकिर नाइक के कुछ चमचे थे जिन्होंने मोबाइल पर मनाजरा किया था, वो नेट पर डला हुआ है। हुआ यह था कि नागपुर में दरस हदीस देता था मैं, उस वक्त काफ़ी साल पुरानी बात है। तो सिर्फ रसूलुल्लाह के नूर पर मैंने तकरीबन 8 मजलिसें, यानी 2-2 घंटे की 8 मजलिसें होती थी दर्स में, यानी 16 घंटे सिर्फ रसूलुल्लाह के नूर पर तकरीर की थी मैंने, 16 घंटे। अब बड़े बड़े हदीसों के हवाले दिए थे, नेट पर वो सारी तकरीरें मौजूद है। वो दर्स की पेट में दर्द हुआ उनके, तो उन्होंने फिर मनाजरा किया था। तो बहरहाल उन्होंने एक हदीस सुनाई थी मनाजरे में, उस वक्त नेट पर वो ऑडियो में मौजूद है, आप सुन सकते हैं जाके। वो हदीस क्या सुनिए, कहा रसूलुल्लाह का नूर सबसे पहले पैदा नहीं हुआ। तो हमने पूछा भाई क्या पैदा हुआ फिर सबसे पहले? कहा सही हदीस में आता है कि सबसे पहले कलम को पैदा किया अल्लाह ने। सबसे पहले किसे पैदा किया? कलम को, पेन। हमने कहा भाई किस किताब में हदीस? हालांकि मुझे तो मालूम था इसकी औकात कितनी है। मैंने कहा उसी के लफ्ज से तो सुनो पहले, कितना पढ़ता और कितना सुनाता है। तो उसने सुनाया, कहा जामे तिरमिजी में जो हदीस है जिसको इमाम तिरमिजी ने हसन कहा, और कहा आपने जितनी हदीस की हाकिम अल मुस्तदरक तबरानी और ये सब सुनाई, ये मोतबर नहीं है क्योंकि ये सियासत्ता की किताबें नहीं है। और इमाम बुखारी की जो तारीखुल कबीर आपने पेश की वो भी सियासत्ता में नहीं है, लिहाजा ये हदीस काबिल एतबार नहीं है, सियासत्ता की हदीस पर ही एतबार होगा। मैंने कहा अच्छा चलिए सुनाइए सियासत्ता की हदीस। तो उन्होंने जो हदीस सुनाई तो कितना सुनाया था, कहा कि अल्लाह के रसूल फरमाते कि सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया। मैंने कहा आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है वो, बोले बस इतनी ही हदीस है। मैंने कहा रूए जमीन के सबसे बड़े कज्जाब और झूठे तुम लोग हो, सबसे बड़े झूठे। पूरी हदीस सुना, आधी क्यों सुनाता है? आधा दिन लेता है, पूरा दिन क्यों नहीं लेता? पूरा दिन लेगा तो तेरी पोल खुल जाएंगी। जो आधा मर्द हो वो पूरा मर्द हो सकता है? नहीं हो सकता ना, मर्द होगा तो पूरा ही होगा।
तो आधी हदीस पढ़ता है, कहता है अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने कहा, इन्ना अव्वला मा खलक़ल्लाहुल कलम, बेशक सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया। मैंने कहा आगे बढ़, आगे बढ़, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो मैंने अब उसको पूरी हदीस सुनाई और उसके बाद मैंने जवाब दिया। तो जवाब के बाद क्या हुआ था मालूम? जवाब तभी मैं बताऊंगा। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, गूंगे बहरे मुक्के लौट कर आने वाले नहीं। उसमें आप सुनना, वो बोलकर उसने मनाजरा खत्म किया कि आपकी तहकीक बहुत ज्यादा वसी है, मेरा मुताल्ला उतना नहीं, मैं तो अभी जाकिर नाइक का जुम्मा 8 दिन का चमचा हूं, तो मैं अभी ट्रेनिंग में हूं। इंशाअल्लाह मुताल्ले के बाद फिर आपसे दोबारा दूसरी नशिश में गुफ्तगू होंगी। इसको आज 5 साल का अरसा हो गया और दूसरी नशिश 5 साल तक अभी तक हुई नहीं। 5 साल में हुकूमत बदल जाती है, लेकिन वो अब तक नहीं बदल पाया। बहरहाल आइए पूरी हदीस क्या मैं सुनाता हूं। अन उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, उबादा इब्न सामित से रिवायत है, वो कहते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वला मा खलक़ल्लाहुल कलम, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, सबसे पहले कलम को पैदा किया। फ़क़ाला उक्तुब, और फिर अल्लाह ने कलम को हुक्म दिया, लिख। कलम से क्या कहा अल्लाह ने? लिख। क़ाला मा अक्तुबु, तो कलम ने कहा मौला क्या लिखूं? तो आलिमुल गैब, तो आलिम, मैं तो जाहिल हूं मौला, तूने बस तख्लीक कर दी, मुझे कुछ नहीं पता, तो क्या लिखूं? क़ाला मा उक्तुब, अल्लाह के परवरदिगार क्या लिखूं? फ़क़ाल, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अक्तुबुल क़द्र, ऐ कलम तकदीरों को लिख। फिर अल्लाह फरमाता है, मा काना वमा हुआ काइनुन इलल अबद, ऐ कलम जो कुछ हो चुका, मा काना वमा हुआ काइनुन, जो कुछ हो चुका, वमा हुआ काइनुन, और वमा हुआ काइनुन इलल अबद, और जो कयामत तक होगा, जो हो गया उसे भी लिख, और जो होने वाला है उससे भी लिख। तो सबसे पहले कलम पैदा हुई, और जब उससे पहले कुछ हुआ ही नहीं था तो फिर लिख क्या रही थी? नहीं बात समझ में आई? अरे भाई सबसे पहले कलम पैदा हुई, उससे पहले तो कुछ पैदा ही नहीं हुआ। और अल्लाह फरमा रहे कि लिख, क्या लिखूं? कलम कहती है मा काना, जो कुछ हो चुका। तो क्या हुआ था? हुआ क्या था? नबी का नूर तख्लीक में आ चुका था, हुआ ये था। तो कलम ये भी लिख कि मेरे नबी का नूर बन चुका, मेरे नबी ने मेरी इबादत कैसे की, मेरी तारीफ कैसे की, और मैंने अपने हबीब की तारीफ कैसे की, इसको भी लिख ले। और मेरा हबीब आएगा और कयामत तक क्या होने वाला है उसको भी लिख ले। तो अगर आप कहते कलम सबसे पहले, तो जब कलम सबसे पहले, अच्छा देखो इनका अजीब जहालत। और उसके बाद मैंने उस मनाज़रे में जुमला कहा, मैंने कहा तुम्हारी अक्लों पे अफसोस कि अगर हम कहते हैं कि रसूलुल्लाह सबसे पहले पैदा हुए तो आप कहते शिर्क हो गया, मगर कलम सबसे पहले पैदा हुई तो शिर्क नहीं होता। मतलब कलम अल्लाह की जात में शरीक हो सकती है, यानी कलम को मान लो तो शिर्क नहीं है। अब ये बताओ कलम अफजल है कि रसूल अफजल है? अरे रसूल तो कायनात में सबसे अफजल है, सारी मखलूक में सबसे अफजल है। और दूसरी चीज सुनो, हमारा अकीदा है, हम कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को गैब दिया। कितना दिया? कहा मा काना वमा यकून, जो कुछ हो चुका वो भी नबी जानते हैं, जो कुछ होने वाला है वो भी जानते हैं। तो कहते शिर्क हो गया, मगर कलम ने जो कुछ हुआ वो भी लिख लिया, जो कुछ होने वाला वो भी लिखा। जाना तो लिखा ना, अल्लाह ने बताया तो लिखा ना। तो कलम का इल्म गैब मानते हो, नबी का नहीं मानते? पागल है या नहीं? समझ में आ रही है बात? कहते नहीं अल्लाह साहब ने कलम को बताया तब लिखा था। हमने कब कहा कि रसूल को खुद ब खुद मालूम हो गया? हम भी तो कहते अल्लाह नहीं बताया, जो कुछ हो गया वो भी बताया, जो कुछ होने वाला है वो भी बताया। तो जब आला हज़रत ने कहा मा काना व यकून का इल्म जानते, कहा अहमद रज़ा खताब मुशरिक हो गए, शिर्क की बात करते। मैंने कहा तुम पागल हो गए, अगर मुशरिक आला हज़रत है तो ये बहुत बात के बकौल तुम्हारे, पहला मुशरिक तो फिर कलम है। और वो कलम जो मुशरिक है वो मुशरिक भी नहीं हो सकती, ये तुम्हारा बेहुदा अकीदा है। अल्लाह फरमा रहा है लिख, उसने लिखा। क्या लिखूं? अल्लाह से अर्ज करती है जो हो गया वो भी लिख, जो होने वाला है वो भी लिख। तो उसने अल्लाह का इनकार नहीं किया, अल्लाह की फर्मा बरदारी की। तो जो फर्मा बरदार खुदा होता है वो मुशरिक कैसे होगा? तो वो भी मुशरिक नहीं थी। तो मालूम होगा कि तुम ही काफिर हो, कायनात में कोई मुशरिक नहीं है।
कायनात में कोई काफिर नहीं है, तुम ही पक्के काफिर हो। और मैं तो कहता हूं ना, जमीन भी सुन्नी है। शुबा है आपको? ये जमीन सुन्नी है, ये आसमान सुन्नी है, ये चांद सुन्नी है, ये सूरज भी सुन्नी है। और दलील दे दूं, बुरुदा हजरत उक्काशा आए थे ना, क्या नाम था, उक्काशा क्या था वो, जब हिजरत के टाइम आए थे रसूल को पकड़ने के लिए, सुराका। तो नबी ने जमीन से कहा था सुराका को पकड़ ले। तो जमीन सुन्नी ना होती तो कहती मैं तो खुदा की मानती हूं, आपकी क्यों मानूं? वो सुन्नी थी तो उसको मालूम था कि खुदा का हुक्म, नबी का हुक्म भी खुदा का हुक्म होता है। और जब नबी ने चांद से कहा टूट जा, 2 टुकड़ों में तकसीम हो जा, तो चांद ने नहीं पूछा था ऐ मोहम्मद मैं आपकी क्यों मानूं, आपके इशारे पे क्यों अपने आप को शक करूं, मैं तो खुदा का पाबंद हूं, खुदा साहब की सुनता हूं, अल्लाह साहब की। वो भी शक हुआ। नबी ने सूरज से कहा पलट जा, इशारा किया, सूरज भी पलटा। तो सूरज ने भी नहीं कहा मैं तो पक्का वहाबी हूं, मैं क्यों निकलूं, मैं तो अल्लाह साहब की मानता हूं। कहा है नबी इशारा आप करते जाएं, हम निकलते जाएंगे। चांद ने कहा इशारा करे हम टूट जाएंगे, जमीन ने कहा हुक्म दे हम फट जाएंगे, सूरज ने कहा इशारा करे पलट आएंगे। इसलिए कि हम है सुन्नी, और जो सुन्नी होता है वो जानता है खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, वो भी जानते थे क्योंकि वो भी सब बरेली अकीदे वाले थे। उनको भी पता था कि मुस्तफ़ा की रजा में खुदा की रजा है, अगर मुस्तफ़ा की फर्मा बरदारी ना करेंगे ना तो उधर से इताब नाजिल होने वाला है, उधर से गजब नाजिल होने वाला है। तो कहा परवरदिगार तेरा हबीब इशारा करेगा हम आएंगे, तेरा हबीब कहेगा शक होने को तो हम शक हो जाएंगे। तो सब सुन्नी है, मगर बस यही एक अजीब वहाबी है, और ऐसे वहाबी के सबको मुशरिक ये मान लिया। अरे माँ काना वमा यकून का इल्म रबी के लिए कह दिया तो कहता है तुम मुशरिक, और कलम ने जो कुछ हो चुका वो भी लिख दिया, जो कुछ होने वाला वो भी लिख दिया, तो वो क्यों नहीं मुशरिक हुई? और फिर हदीस सही है, क्योंकि तुम ही तो कह रहे थे हदीस सही है, तो ऐसा भागा वो, क्योंकि पहले तो खूब जोर से उसने हदीस को सही ही बोल दिया था, तो वो 5 साल हो गए अब तक नहीं लौटा। लेकिन मैं बता देता हूं हदीस वाकई सही है। और किस किताब में? जामे तिरमिजी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 457, किताबुल तकदीर अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस नंबर 2155। मगर आइए फिर तदबीक कैसे हो? बात तो अभी भी रुक गई है फिलहाल, कि एक हदीस में अल्लाह के रसूल कहते अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूर, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, ये भी नबी कह रहे हैं। और दूसरी हदीस में सरकार कह रहे हैं इन्ना अव्वला मा खलक़ल्लाहुल कलम, बेशक अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। तो 2 हदीसें हैं, तो इसमें तजाद वाक़ई दिख रहा है बाज़ाहिर, मगर तजाद नहीं है। उसका जवाब बहुत सारे इमाम ने दिया, मैं सिर्फ नाम ले रहा हूं, उनके हवाले दूंगा तो बहुत वक्त हो जाएगा, उनकी बातें पढ़ूंगा, हालांकि मेरे डायरी में यहाँ सब लिखे, सिर्फ हवाले दे रहा हूं। इसकी जो तावील जो बयान की वो क्या की? इमाम अब्दुल रहमान इब्न जौज़ी उन्होंने किताब लिखी मिलादुन नबी, क्या नाम है किताब का? और इमाम अब्दुल रहमान इब्न जौज़ी कब के पता है आपको? 500 हिजरी के गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हुए, बहुत पहले सूफियों को गालियां बकते थे, और उन्होंने किताब लिखी थी तलबीस इब्लीस। वो किताब मेरे पास मौजूद है, वो किताब आप पढ़ लोगे ना तो आप बोलोगे बहुत कट्टर वहाबी है उस दौर के। क्यों इतनी बुरा लिखा है सूफिया इकराम के बारे में और औलिया इकराम के बारे में, तसव्वुफ को मानते ही नहीं थे, बड़े बड़े वलियों की गुस्ताखी कर गए उसमें। मगर देखिए वली वली होता है, आलिम वो होता है जो जाहिर की इस्लाह करता है, और आरिफ वो होता है जो बातिन की इस्लाह करता है। सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुए, गौसे आदम ने कहा अब्दुल रहमान सुना है तुम सूफिया इकराम को बड़ी गालियां बकते हो, बड़ा बुरा भला कहते हो। कहा हुजूर उनके जो किरदार है, उनकी जो हरकतें हैं, उनके जो अमाल है वो हदीस के खिलाफ है। गौसर बाग ने फरमाया अब्दुल रहमान जरा हमारी आंखों में तो देखो। बस देखा, हो गया, तूने पी किताबों से मैंने पी निगाहों से, तेरे में बहुत फर्क है ऐसा ही तेरे मेरे पीने में।
बस निगाह में क्या देखा, कदमे गौसे आजम में गिर गए, रोने लगे, कहा हुजूर अब मैं जान गया तसव्वुफ क्या है, सूफियत क्या होती है, विलायत क्या होती है। सरकार में तायब हुआ, बस क्या दिया गौस पाक ने वो तो वही जाने। और उसके बाद सारी जिंदगी सूफिया के तारीफों में किताब लिखे। वहां बड़े क्या करते हो, बाद की किताबें नहीं दिखाते, पहली वाली लाते। देखो अब्दुल रहमान ने ये लिखा, मैंने कहा बाद वाली भी तो सुना। अधूरा दिन, फिर अधूरा दिन।